بہت دنوں پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت پرانا جنگل تھا۔ اسی جنگل میں ایک چڑیا کا پریوار رہا کرتا تھا۔ اس چڑیا کا نام بلبل تھا۔ اس کے 2 بچے تھے۔ بلبل چڑیا اپنے بیٹے کو زیادہ پیار کرتی تھی کیونکہ وہ ایک لڑکا تھا، اور اپنی بیٹی کو کم پیار کرتی تھی کیونکہ وہ ایک بیٹی تھی۔ ایک دن بلبل چڑیا گھومنے جا رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے بیٹے ببلو سے کہتی ہے، چلو ببلو بیٹا، ہم لوگ کہیں گھوم آتے ہیں، بہت دن ہو گیا ہم لوگ کہیں گئے نہیں ہیں۔ ببلو بہت خوش ہو جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے، ٹھیک ہے ماں، ہم دونوں تیار ہو جاتے ہیں، پھر آپ ہم دونوں کو گھمانے کے لیے لے جانا۔ نہیں، ریا چڑیا گھر پر ہی رہے گی، وہ ہم دونوں کے ساتھ گھومنے نہیں جائے گی، صرف ہم لوگ جائیں گے گھومنے، وہ گھر پر رہ کر گھر کے سارے کام کرے گی۔ یہ سن کر ریا چڑیا کو بہت برا لگتا ہے اور ببلو کو بھی، کیونکہ وہ دونوں بھائی بہن آپس میں بہت پیار کرتے تھے، لیکن اپنی ماں کی وجہ سے ببلو کچھ نہیں کہتا ہے۔ ریا چڑیا اپنی ماں کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، آپ لوگ جائیے، میں گھر کا سارا کام کر لوں گی، آپ لوگ آرام سے آئیے گا۔ ان دونوں کے گھومنے جانے کے بعد بیچاری چڑیا اکیلے گھر پر کام کرتی ہے، لیکن وہ اس بات سے بہت اداس تھی کہ اس کی خود کی ماں اس کے اور اس کے بھائی میں اتنا بھید بھاؤ کرتی ہے۔ ریا چڑیا ساری باتیں سوچ کر رو رہی تھی۔ میری ہی ماں میرے ساتھ ایسا ویوہار کیوں کرتی ہے؟ ماں ببلو چڑی کو کتنا پیار کرتی ہے، لیکن اس کی اپیکشا مجھے بہت کم پیار کرتی ہے، ایسا کیوں کرتی ہے ماں آخر؟ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں گھوم کر لوٹ آتے ہیں، تب ببلو چڑیا اپنی بہن کے پاس آ کر اس سے کہتا ہے، دیدی تم چنتا مت کرو، ایک دن ماں تم کو بھی پیار کریں گی، ہم دونوں کو ساتھ میں گھمانے لے جایا کریں گی۔ یہ بات سن کر وہ اپنے بھائی کو گلے سے لگا لیتی ہے۔ اسی طرح سے سمے بیتتا ہے اور ایک دن ریا چڑیا کی ماں بلبل چڑیا کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے، اس کے سر میں زوروں کا درد ہو رہا تھا۔ ایسے میں ببلو چڑیا گھر چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ ارے یہ ببلو بھی نہ جانتا تھا میری طبیعت خراب ہے، پھر کہاں چلا گیا؟ اسے معلوم ہے کہ میری رات سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر بھی چلا گیا۔ تبھی بلبل ریا چڑیا کو اپنے پاس بلاتی ہے اور ریا چڑیا سے اپنا سر دبانے کو کہتی ہے کیونکہ اس کے سر میں بہت زوروں کی درد ہو رہی تھی۔ جب تک بلبل چڑیا ٹھیک نہیں ہو گئی تب تک ریا چڑیا اس کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد بلبل چڑیا ٹھیک ہو گئی تب ببلو چڑیا گھر آیا۔ وہ غصے سے اپنے بیٹے سے کہتی ہے، تجھے عقل نہیں ہے؟ یہاں میری اتنی طبیعت خراب تھی اور تو پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا تھا، اتنے دنوں سے تو غائب تھا، میں کتنا پریشان تھی۔ ان دنوں ریا چڑیا نے میری دیکھ بھال کی ہے، تجھے میں کتنا پیار کرتی ہوں، پھر بھی تو ایک بار بھی میری حال پوچھنے نہیں آیا۔ ماں، تم ریا دیدی سے بالکل بھی پیار نہیں کرتی، پھر بھی اس نے آپ کی اتنے دن سیوا کی، اور مجھ سے آپ اتنا پیار کرتی ہیں، پھر بھی میں نے آپ کی حال بھی نہیں لی۔ کیا اب بھی آپ ریا دیدی کو پیار کرو گے یا نہیں؟ ہاں بیٹا، اب مجھے سمجھ میں آ گیا ہے کہ میری ریا بیٹی مجھے بہت پیار کرتی ہے، اب میں بھی اسے بہت پیار کروں گی۔ میں اب کبھی بھی بیٹی اور بیٹے میں انتر نہیں کروں گی، دونوں کو ایک ہی نظر سے دیکھوں گی، آجا میری پیاری بچی۔ پھر بلبل چڑیا ریا چڑیا کو اپنے گلے سے لگا لیتی ہے اور اس کو بہت پیار کرتی ہے۔ سیکھ: ہمیں بیٹی اور بیٹے میں کبھی فرق نہیں کرنا چاہیے کیونکہ دونوں ہی ایشور کی دین ہیں۔ کبھی کبھی تو بیٹے سے زیادہ بیٹی ہی کام آتی ہے۔ گرمی کے موسم میں گوری کوئی ٹھنڈی ندی کے پاس بیٹھ کر پکا ہوا میٹھا آم کھا رہی تھی۔ دور بیٹھی ہوئی چڑیا گوری کو آم کھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ چڑیا چڑیا میرے پاس آؤ۔ چڑیا گوری کوئی کے
प्यास आ जाती है। क्या तुमने इसके पहले कभी आम खाया है? जी बहन, पिछले साल के मौसम में मैंने भी एक आम खाया था। लो चिड़िया बहन, थोड़ा आम तुम भी खा लो। चिड़िया बहन जैसे ही आम लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है, तुरंत ही गोरी कौवी उसे अपने मुंह में डाल लेती है। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। मीठा था ये आम, बड़ा मीठा था। तुम बहुत बुरी हो, तुम गंदी कौवी हो, तुम दूसरों का जी चाहती हो। मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे तुम हर रोज किसान के खेत से फल चोरी करने जाती हो, किसी दिन पकड़ी गई तो बहुत मार पड़ेगी। कालू जी, तुम तो कमा कर लाते नहीं हो, अब क्या मैं भूख से मर जाऊं? चोरी करूंगी तो पेट भरूंगी। किसान बहुत जालिम होता है। गोरी भी बहुत जालिम है, मैं ऐसे चोरी करती हूँ कि कभी पकड़े नहीं जाऊंगी। अगले दिन गोरी कौवी फिर से किसान के खेत में जाती है और जाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाती है। गोरी कौवी जैसे देखती है कि खेतों में कोई नहीं है, वो जल्दी से आ जाती है। गोरी कौवी खेतों में से चोरी कर रही होती है, तभी वहाँ पर वो चिड़िया आ जाती है जिसे गोरी कौवी ने आम का फल नहीं दिया था। चिड़िया ये सब देख लेती है कि गोरी कौवी चोरी कर रही है, लेकिन चिड़िया उस दिन कुछ भी नहीं बोलती। अब यूं ही दिन बीतने लगते हैं और चिड़िया गोरी कौवी को रोजाना चोरी करते हुए देखती थी, लेकिन अब चिड़िया ने ठान लिया था कि वो गोरी कौवी को सबक सिखाए बिना नहीं रहेगी। अगले दिन जब कौवी खेतों में चोरी करने आई तो चिड़िया पहले से ही एक पेड़ पर छिपी बैठी थी और अपने हाथों में जाल लिए हुए थी। जब वो चोरी कर रही थी तभी चिड़िया ने उसके ऊपर जाल फेंक दिया। बचाओ बचाओ, ये मुझे क्या हो गया? चिड़िया गोरी कौवी को अपने घर ले आती है। तब गोरी कौवी उसे देखकर कहती है, तुमने मुझे अगवा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सिर्फ एक आम ही तो नहीं दिया था मैंने। मुझे छोड़ दो वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए चिड़िया। मैं एक बार छूट जाऊं तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ोगी तो तब नहीं ना जब तुम यहाँ से छूटोगी। मैं तो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूँ। अब ये जो तुम्हारी घटिया घटिया आदतें हैं ना, जैसे कि चोरी करना, दूसरों से झूठ बोलना, दूसरों को लालच देना, ये किसी भी पक्षी को पसंद नहीं है। अब तो तुम छूटने वाली नहीं हो यहाँ से। हाँ, मैं एक बार सोच सकती थी तुम्हें छोड़ने के लिए, अगर तुम सीधी हो जाओ, अगर तुम सुधर जाओ तो मैं तुमको छोड़ने का सोच सकती हूँ। कहो, क्या कहती हो? क्या मुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा? तो मैं अपना पेट कैसे भरूंगी? मेरे पास कुछ खाने को नहीं होता है, इसलिए मैं चोरी करती हूँ खेतों से। मेरे पति कोई काम नहीं करते हैं, इसलिए मैं अपना पेट भरने के लिए इधर उधर सबके खेतों में से कुछ न कुछ चुरा कर खाया करती हूँ, वरना मैं तो भूखी मर जाऊँ। चोरी करना मेरा शौक नहीं है, मेरी मजबूरी है। अगर ऐसी बात है तो तुम हम सब पक्षियों के घर से खाना मांग सकती हो। तुम्हें चोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हमसे खाना मांगो, हम तुम्हें जरूर देंगे। और रही बात काम की, तो हम तुम्हारे पति को काम देंगे, लेकिन हाँ, एक शर्त है कि तुम इसके बाद कभी भी चोरी नहीं करोगी और ना ही किसी को उल्लू बनाओगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब से मैं कभी भी चोरी नहीं करूंगी और न ही किसी को उल्लू बनाऊंगी। फिर चिड़िया पूरे जंगल में ये बात फैला देती है कि गोरी कौवी चोर नहीं, वो अपनी मजबूरी की वजह से ये सब करती थी। सारे पक्षी इसकी मदद करें। फिर यही होता है। फिर क्या था, सारे लोग गोरी कौवी की मदद किया करते थे हमेशा। फिर सभी पक्षी खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं और गोरी कौवी कभी भी चोरी करने का नहीं सोचती। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी चोर नहीं बनना चाहिए। और अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई पल आए कि हमारे पास पैसे ना हो खाने के लिए, तो हम दूसरों से मांग सकते हैं, लेकिन चोरी नहीं। प्यारे बच्चों, चोरी करना बहुत गलत बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो
तो जल्दी से लाल वाला बटन दबा दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर कहानी आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। नेपाल में एक जंगल था। उसमें टूनी चिड़िया अपनी सास सुंदरी कौवी के साथ रहा करती थी और टूनी चिड़िया का पति बंटी कबूतर शहर में एक कंपनी में काम किया करता था, लेकिन गांव की टूनी उसे पसंद नहीं आती थी। इसीलिए बंटी कबूतर ने शहर की एक लड़की से शादी कर ली थी। इस बात की खबर जब टूनी चिड़िया को लगती है तो वो बहुत रोने लगती है। माँ जी, मैंने ऐसी क्या गलती की थी जो ये मुझे छोड़कर यूं दूसरी लड़की के पास चले गए। अब तो मैं क्या करूँगी? मेरी तो पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो गई। अब मैं बिना पति के अपने बेटे को कैसे पालूंगी? मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई माँ जी। तक आप लोग बताइए, ऐसा कौन सा पक्षी है जो दिन में सोता है और रात में जागता है? हमें कमेंट में बताएं। जिसका जवाब सही होगा उसका जवाब पिन कर दिया जाएगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा ऐसा निकलेगा। मत रो बहू, शायद मेरी परवरिश में ही कोई खोट रही होगी, इसलिए तो उसने तेरी जैसी संस्कारी बहू को छोड़कर उस चुड़ैल से शादी कर ली। तू परेशान मत हो, देख तेरी बेटी तुझे रोता देखकर सहम गई है। तू सिर्फ अपनी बेटी पर ध्यान दे, उसे भूल जा, उसके बारे में मत सोच। घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो गई थी। टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो गई थी। माँ जी, मैं सोच रही थी कि मैं बाहर जाकर कुछ काम की तलाश कर लूं, क्योंकि घर में जितनी भी जमा पूंजी थी अब सब खत्म हो चुकी है। अब हमारे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है और ना ही पैसे हैं। अरे हाँ, वो तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन तो काम क्या करेगी? लेकिन फिर भी जाके देख ले, हो सकता है कोई काम मिल ही जाए तुझे। टूनी चिड़िया जा रही होती है तभी उसकी बेटी उसे रोककर जिद करने लगती है। माँ, मुझे भी ले चलो, मैं भी जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी, मुझको भी ले चलो ना माँ। अरे नहीं बेटा, मैं तुझे नहीं ले जा सकती। तू यहीं घर पर अपनी दादी के पास रह, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। तू मुझे परेशान मत कर। फिर टूनी चिड़िया जाती है और कई जगह काम मांगती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता है। उदास होकर टूनी चिड़िया एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वहाँ उसे एक दर्जी दिखाई देता है। अरे, मैंने तो शादी से पहले फैशन डिजाइनर का कोर्स किया था। चलो देखती हूँ, हो सकता है ये दर्जी भैया मुझे काम दे दें। अरे दर्जी भैया, अगर हो सके तो मुझे आप कोई काम दे दीजिए, मेरा और मेरी बच्ची का थोड़ा भला हो जाएगा। अरे चल भाग यहाँ से, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। वैसे ही मेरा दिमाग खराब है, मेरा वर्कर नहीं आ रहा है। चल भाग यहाँ से। टूनी चिड़िया फिर से निराश होकर एक डाल पर बैठ जाती है और अपने मन ही मन बोलने लगती है, अब मैं क्या करूं? ये टेलर भैया ने भी मुझे कोई काम नहीं दिया। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अगर मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, तब भी मेरे पास पैसे ही नहीं है। मैं कहां से बुटीक खोलूंगी? अरे हाँ, मेरे पास तो कुछ गहने पड़े हुए हैं, मैं उसी को बेचकर अपना एक बुटीक खोल सकती हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मैं जाती हूँ और गहने बेच देती हूँ। फिर क्या था, टूनी चिड़िया ने अपने गहने बेचकर एक छोटा सा बुटीक खोल लिया अपने घर में ही। उसके बाद उसने कपड़ा सिलना शुरू कर दिया। उसके कपड़े बहुत खूबसूरत होते थे। उसकी दुकान में तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी हमेशा। कोई लहंगा सिलवाता, तो कोई गाउन, तो कोई साड़ी, तो कोई ब्लाउज। कुल मिला के टूनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी थी। इसी तरह टूनी चिड़िया की जिंदगी अच्छे से कटने लगती है। फिर टूनी चिड़िया अपनी सास और बेटी के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। गुलनाज बेटा, जरा बाहर जाकर देखो, लगता है कोई फकीर आया है। अल्लाह के नाम पे उसे कुछ फितरा दे दो।
दरवाजे से फकीर वापस नहीं जाना चाहिए। अम्मी जान, मैंने पहले से ही फितरा निकाल कर रखा है। तुम बहुत समझदार हो बहू। गुलनाज दरवाजे पर जाती है और फकीर को फितरा दे देती है। अम्मी जान, रमजान का महीना शुरू होने वाला है तो मैं घर की साफ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ और घर को सजाने की तैयारी में लग जाती हूँ। इस बार हमारा रमजान अच्छे से जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो बहू, अल्लाह की रहमत है जो मुझे तुम जैसी बहू मिली है। सकीना को अपनी बहू बहुत पसंद थी क्योंकि वो अपनी बहू को अपने बेटे से गांव से निकाह करवा कर लाई थी। तुम ये सारे काम करो आराम से, तब तक रमजान शुरू होने से पहले मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े बनवा देती हूँ। सकीना ऐसा कहने के बाद कपड़े सिलवाने के लिए दर्जी के पास जाती है। देखो, मेरी एक बहू है तो मैं चाहती हूँ कि रमजान में वो जो कपड़े पहने बहुत अच्छे और सुंदर दिखने चाहिए। ठीक है, मैं आपको ये सब एक हफ्ते में सिलकर दे दूंगा। सकीना घर की ओर जा रही होती है कि तभी उसके छोटे बेटे का फोन आता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम बेटा आजाद, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो, और ये बताओ कब आना है घर? शहर में जाने के बाद तो तुम अपने अम्मी अब्बू को भूल ही गए हो। मैं वापस आ रहा हूँ अम्मी जान, आज ही शाम तक पहुँच जाऊँगा। ये सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और घर पहुंचकर अपनी बड़ी बहू से बताती है, आज खाने में आजाद के पसंद का ही खाना बनाना। आज मेरा लाडला बेटा वापस लौट रहा है। ठीक है अम्मी जान, जैसा आप कहें। गुलनाज आजाद की पसंद का खाना बनाने की तैयारी में लग जाती है। तभी शाम को उनका दरवाजा बजता है। मेरा बेटा आ गया, मैं खुद दरवाजा खोलने जाऊंगी। सकीना दरवाजा खोलती है जहां उसके बेटे के साथ एक लड़की भी होती है। बेटा तू आ गया, तेरी अम्मी जान की आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए। आजाद अपनी अम्मी को गले लगा लेता है। अम्मी जान, मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती थी और इस रमजान मैं आप सबसे मिलना चाहता था और किसी से मिलवाना भी चाहता था। इससे मिलिए अम्मी जान, ये है ज़ैनब। बड़ी ही प्यारी है बेटा, तेरी दोस्त है क्या? नहीं अम्मी जान, ये आपके बहू है। मैंने ज़ैनब से निकाह कर लिया है। बेटा, तूने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे मैं तो तेरी अम्मी हूँ, कम से कम मुझे तो बता देता। अम्मी जान, समझने की कोशिश कीजिए, सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि मुझे बताने का वक्त ही नहीं मिल सका। तभी वहाँ आजाद के अब्बू आ जाते हैं। अरे अरे, मेरे बेटे से सारे सवालात यही दरवाजे पे ही कर लोगी क्या? उसे अंदर नहीं बुलाओगी? अरे आपका बेटा निकाह करके आया है। अरे लड़कपन की उम्र है, जो किया सो किया। आओ बेटा, अंदर आओ, घर में बहू को भी ले आओ। आजाद ज़ैनब को घर के अंदर ले आता है, लेकिन जब सकीना ज़ैनब के सर पर हिजाब नहीं देखती है तब बोलती है, ज़ैनब ये तुम्हारा ससुराल है लेकिन तुमने सर पर हिजाब नहीं पहना। हिजाब की क्या जरूरत है, आजकल इतना ओल्ड फैशन थोड़ी ही रहा है। लेकिन हिजाब तो बहुत जरूरी है और तुम इस घर की अब बहू हो। अम्मी जान, मैं ज़ैनब को समझा दूंगा। क्या मैं अभी ज़ैनब को कमरे में ले जा सकता हूँ? हाँ बेटा, ले जाओ ले जाओ। नजीर के कहने पर आजाद अपनी बीवी ज़ैनब को अपने कमरे में ले जाता है और उसे हिजाब पहनने के लिए कहता है। और इधर सकीना गुस्से में बैठ जाती है। या अल्लाह, मैंने ऐसे सोचा नहीं था कभी। ये आजकल के बच्चे और उनकी सोच। पहले दिन से ही सकीना को शहर की बहू पसंद नहीं थी, वहीं उसकी गांव की बहू बहुत संस्कारी होती है और घर को अच्छे से समझती है। लेकिन सकीना कुछ कर भी नहीं सकती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन वो अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, देखो कल से रमजान के रोजे शुरू हो रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं रोजे रखें। अम्मी जान, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी कि रमजान के रोजे आए। मुझे इबादत करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बहू, इस रमजान तुम अल्लाह से अपने लिए कुछ अच्छा मांग लेना।
अब तक आपने देखा कि सकीना अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है और बताती है कि रमज़ान का पाक महीना शुरू होने वाला है, तो मेरी दोनों बहुएं रोज़े रखेंगी। अब आगे। सकीना की बातें सुनकर जहां गुलनाज़ बहुत खुश होती है, वहीं ज़ैनब अपने मन में सोचती है, मेरी जिठानी तो अम्मी की बुरी चमची है। देखो तो कैसे अम्मी के सामने अपने नंबर पर नंबर बढ़ा रही है। रोज़ा तो पता नहीं, लेकिन ये अम्मी के सामने फालतू का ड्रामा ज़रूर कर रही है। ज़ैनब, तुम्हें रोज़ा रखने में कोई मुश्किल तो नहीं है? नहीं अम्मी जान, मुझे कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो बचपन से ही रोज़े रख रही हूँ। मुझे रोज़े रखना बहुत अच्छा लगता है। ज़ैनब ने इससे पहले कभी रोज़ा नहीं रखा था। वो अपनी सास के सामने झूठ बोल देती है। इसी तरह दोनों बहुओं के दूसरे दिन से रोज़े शुरू हो जाते हैं, जिसके लिए गुलनाज़ सुबह के 3 बजे सेहरी की तैयारी करने के लिए उठती है। जल्दी से सेहरी बना लेती हूँ, 4 बजे से पहले सेहरी लेनी है। गुलनाज़ अकेले ही पूरी सेहरी बनाती है और ज़ैनब अपने कमरे में आराम से सो रही होती है। जैसे ही सकीना गुलनाज़ को किचन में अकेला देखती है, वो तुरंत ही ज़ैनब को उठाने जाती है। ज़ैनब, ज़ैनब, अब उठो भी, क्या तुम्हें सेहरी नहीं लेनी है? क्या हुआ अम्मी जान? तुम अभी तक सो रही हो? तुम्हारी जेठानी किचन में अकेले ही सेहरी बना रही है। अच्छा अम्मी जान, मैं अभी आती हूँ। इतना कहने के बाद सकीना उठती है और नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है। इसके बाद सकीना सेहरी के लिए चली जाती है और इसके कुछ देर बाद ज़ैनब भी खाने के टेबल पर आ जाती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू जान। वालेकुम अस्सलाम बहू बेटा, बैठो, सुबह की सेहरी ले लो। तुम्हें वक्त से उठना चाहिए था ज़ैनब। गुलनाज़ की तरह तुम भी इस घर के बहू हो। तुम कब अपनी जिम्मेदारियों को समझोगी? समझती हूँ अम्मी जान, बस मेरी आँख ही नहीं खुली। ये सुनकर सकीना को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो अपने शहर के बहू से कुछ कह नहीं पाती। फिर सुबह की सेहरी के बाद उन लोगों का रोज़ा शुरू हो जाता है। दोपहर होते होते एक फकीर दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा हो जाता है। अल्लाह के नाम पे दे दे, अल्लाह तुम्हारी हर मुराद पूरी करे। फकीर के पुकारने की आवाज से परेशान होकर ज़ैनब दरवाजे पर आती है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो दरवाजे पर खड़े होकर? अल्लाह के करम से तुम्हारे दोनों हाथ और दोनों पैर सलामत हैं। खुद कमाकर क्यों नहीं खाते हो? मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत हो गई है तुम जैसे लोगों को। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जरा इस फकीर की हालत तो देखो। क्या मैं कमाने लायक दिखता हूँ? अब मेरी उम्र हो गई है। आप जैसे अमीर लोगों की 2 रोटी खाकर मैं अपना गुजारा कर रहा हूँ। ज़ैनब फकीर की एक नहीं सुनती है और उसे डांट कर भगाने लगती है। ये सब गुलनाज़ और सकीना देख लेती हैं। गुलनाज़ फौरन रसोई में जाती है और फकीर के लिए फितरा लाती है और फितरा लाकर फकीर को दे देती है और फकीर से कहती है, अल्लाह आपकी हिफाजत करे। ये लीजिए बाबा, फितरा ले लीजिए। देखा ज़ैनब तुमने? तुम्हारी जेठानी से कुछ सीखो। गुलनाज़ की तहजीब घर में सभी को बहुत अच्छी लगती थी और वहीं ज़ैनब की आदतों से घर में सब परेशान आ चुके थे। ऐसे ही रमज़ान के रोज़े रखने के बाद भी ज़ैनब रोज़े के बीच में ही कुछ न कुछ खा लेती है। किसी को क्या पता कि मैं कुछ खा रही हूँ, छुपकर खा लेती हूँ। बहुत तेज़ भूख लगी है, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता है। इस बीच ज़ैनब की तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है। उसके पेट में ज़ोर का दर्द होने लगता है। अम्मी जान, भाभी, मुझे कोई हॉस्पिटल ले चलो। ज़ैनब को किसी तरह अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर उसका चेकअप करके बताते हैं, लगता है डाइजेशन सिस्टम में कुछ गड़बड़ हुई है। कहीं आपने रोजे के बीच में कुछ खाया पिया तो नहीं है? दरअसल ऐसा तब होता है जब रोजे के बीच में कुछ खाया पिया जाए। रोजा रखा इसीलिए जाता है ताकि हमारी बॉडी डिटॉक्स हो सके, लेकिन अगर इस बीच इस प्रक्रिया को ठीक से न किया जाए तो पेट में ऐसा दर्द हो जाता है। हाँ डॉक्टर,
दरअसल मुझसे भूखे नहीं रहा गया तो मैंने सुबह सेहरी का बचा हुआ खाना दोपहर में खा लिया था। ये सुनकर सकीना और गुलनाज के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मुझे माफ़ कर दीजिए अम्मी जान, मैंने रमज़ान के रोज़े सही तरह से नहीं रखे, इसीलिए मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह मियाँ तुम्हें रहम बख्शे। सकीना गुस्से में होती है और वापस घर चली जाती है। तब गुलनाज अपनी देवरानी को बड़े ही प्यार से समझाती है, अल्लाह की नज़र हर वक्त हमारे ऊपर होती है, भले ही दुनिया में कोई न देखे पर वो अल्लाह सब दिलों का राज जानता है। तो तुम तो सामने से ही खाती थी, तुम्हारे पास अभी भी वक्त है अल्लाह को खुश करने का। अब अपनी जेठानी गुलनाज की बातें सुनकर ज़ैनब को अकल आ जाती है और वो हिजाब पहनना शुरू कर देती है। अब सकीना भी उससे खुश रहने लगती है।